عام انتخابات کی تیاریاں، انتخابی شیڈول میں معمولی تبدیلی، سیاسی جماعتوں کی جانب سے کاغذات نامزدگی کل تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ جانچ پڑتال کا عمل پیر 25 دسمبر سے شروع ہوگا۔ 11 جنوری کو نظرثانی شدہ فہرستیں جاری کی جائیں گی۔ امیدوار 12 جنوری تک کاغذات واپس لے سکیں گے۔ شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد، الیکشن کمیشن کا انتخابی عمل میں رکاوٹوں سے متعلق شکایات کا نوٹس۔ صوبائی الیکشن کمشنرز، چیف سیکرٹریز، آئی جی سندھ، چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی کو مراسلہ، تمام شکایات کو قانون کے مطابق حل کرنے کا حکم۔ تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی انتخاب کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا متن جاری ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے انتخابات پارٹی آئین کے مطابق نہیں کرائے، یہ کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ انتخابات کے انعقاد میں کوئی تاخیر نہیں، 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ ہمیں چیف الیکشن کمشنر پر بھرپور اعتماد ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ بلوچستان سے آئے مظاہرین سے متعلق کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے، پوری کوشش ہے مسائل حل کریں۔ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی میڈیا سے گفتگو۔ صدر مملکت اور نگراں وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مظاہرین کے ساتھ اسلام آباد میں پولیس کے غیر مناسب سلوک پر اظہار تشویش۔ پولیس کو مظاہرین کے خلاف سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ گرفتار مظاہرین کی ذاتی مشرقوں پر رہائی کی گئی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کی شمالی وزیرستان اور بلوچستان میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کے لواحقین سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ 22 نومبر کو رزمک شمالی وزیرستان اور 3 نومبر کو پسٹی بلوچستان میں شہید ہونے والے جوانوں کے ورثاء سے اظہار ہمدردی۔ لانس نائک احسان بادشاہ اور لانس نائک ساجد کو خراج عقیدت پیش۔ صدر مملکت کا لانس نائک پر پردم ولی کو بھی جان کا نذرانہ پیش کرنے پر قوم کی جانب سے سلام۔ عدلیہ اور اس کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں۔ سائفر کے بارے میں جلسوں میں تقاریر کی گئیں۔ سائفر کو بنیاد بنا کر ماضی کی حکومت نے سیاست کی۔ رہنما مسلم لیگ نون ملک احمد خان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ اسرائیلی شفاقیت کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری۔ وحشیانہ بمباری سے بڑی تعداد میں شہادتیں، 20,000 سے زائد شہداء و 14,000 بچے اور خواتین شامل، 5,76,000 سے زائد فلسطینی فاقہ کشی کا شکار۔ سنگین صورتحال پر اقوام متحدہ کا اظہار تشویش۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ آسٹریلیا، قومی ٹیم کی مشکلات میں اضافہ۔ خرم شہزاد کے بعد نعمان علی بھی فٹنس مسائل کا شکار، سیریز سے باہر ہو گئے۔ دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستانی اسکواڈ کی میلبرن میں تیاریاں جاری۔ قومی ٹیم نے وکٹوریہ 11 کے ساتھ 2 روزہ پریکٹس میچ کھیلا۔ پاکستان آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ گھڑ سواری شوق کے ساتھ ساتھ شجاعت اور فن بھی۔ ملتان میں ثقافتی کھیل نیزہ بازی کا مقابلہ۔ گھڑ سواروں کا سر پر دوڑتے گھوڑے پر بیٹھ کر توازن برقرار رکھنے کا مظاہرہ۔ نیزے سے زمین میں گاڑی گئی لکڑی کی تختیاں اکھاڑ دی۔ یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات ایونٹ سے خوب محظوظ ہوئے۔ اور سعودی عرب میں فیفا کلب فٹ بال ورلڈ کپ، انگلش کلب مانچسٹر سٹی کی رواں سیزن میں 5ویں ٹرافی۔ چیمپئنز لیگ، ایف کپ، پریمیئر لیگ، یویفا سپر کپ کے بعد کلب ورلڈ کپ ٹائٹل بھی اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں برازیل کے فلومینس کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 4 گول سے مات دی۔
सिटी का ये पहला क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप एहसास है। मिस्र के क्लब अल अहली ने जापान के अरोरा रेड्स को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में। आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं, खबरें होंगी तफसील के बाद, इस ब्रेक के बाद। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। क्लिक 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 टैप टैप हो गया सब लाइव ऑल इन वन ऐप। Funds हो transfer अब hassle free, सारी transactions हो easily, सब हो जाए perfect, सब हो जाए perfect। MCB लाइव पे नो झंझट, यहाँ हो सब सिक्योरली, क्योंकि ये है द बेस्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग श्योरली। तो डाउनलोड करो MCB लाइव, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। वेलकम बैक नाजरीन। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के मुतालबे पर कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज़ की तौसी की थी। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का कल आखिरी दिन है। रुख करते हैं लाहौर का, जहां कागजात नामजदगी की वसूलियों के हवाले से गहमा गहमी का सिलसिला जारी है। लाहौर से इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौज़मुद्दीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मौज़म, आगाह कीजिएगा, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं लाहौर में इस हवाले से? आज बिल्कुल सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में भी आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जो है वो जारी है। गुज़श्ता रोज़ जो इसका जो वक्त था उसको 2 दिन की मज़ीद तौसीह की थी और आज चौथा रोज़ है, जबकि कल आखिरी रोज़ होगा और कल एक आखिरी जो लिस्टें हैं वो जारी की जाएंगी कि जिन उम्मीदवार ने जो कागजात नामजदगी जमा कराए उनके नाम जारी किए जाएंगे। उसके बाद 25 से लेकर 30 दिसंबर तक जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से उनकी जाँच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद 31 से लेकर 3 तारीख तक रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से जो कागजात मुस्तरद किए जाएंगे या मंजूर की जाएंगे उसके ऊपर अपीलें जो है वो फाइल की जाएंगी। जिसके बाद 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 10 जनवरी तक जो है वो अपने ट्रिब्यूनल जो है उसके ऊपर फैसले करेगा और 11 तारीख को नज़रसानी के बाद जो है वो जो इब्तदाई लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी और 12 तारीख को जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात जो हैं वो वापस ले सकते हैं और 13 तारीख को जो उम्मीदवार हैं उनको जो उनके इंतखाबी निशान है वो अलॉट कर दिए जाएंगे। अगर मैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की बात करूँ तो लाहौर शहर की जो 14 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं उसके ऊपर अब तक 750 से ज़ायद उम्मीदवार ने जो कागजात नामजदगी है वो हासिल की हैं, जबकि 150 से ज़ायद जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अभी तक कागज़ जो है वो जमा करा दी। जबकि जो सूबाई सीटें हैं कहते हैं लाहौर शहर की जो 30 सीटें हैं उसके ऊपर अब तक 2000 से ज़ायद जो है वो कागजात जो है वो जारी किए जा चुके हैं, जबकि 450 के करीब जो कहते हैं उम्मीदवार ने अपने कागज़ जमा करा दिए हैं। तो आज चौथा रोज़ है। अब मेरे पीछे अगर आप देख सकें तो अभी भी रश है। सियासी जमातों की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि इसमें जो वक्त है ये बहुत थोड़ा है, इसमें तौसीह की जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन जो का वक्त जो है उसको बढ़ाया था। इस वक्त भी मेरे पीछे मैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर मखसूस नशस्तों के ऊपर जो है पंजाब भर से जो है वो जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवाए जा रहे हैं और उम्मीदवार यहाँ पे आ रहे हैं और अपने कागज़ जमा करवा रहे हैं। उसके अलावा जो मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं, सियासी उम्मीदवार हैं, वो अपने हलकों में भी जाके जो NA जो मुख्तलिफ कौमी असम्बली के सूबाई की जो दफातर हैं वहाँ पर जाके अपने कागज़ जमा करवा रहे हैं और उसके बाद जो है जो दूसरा अमल है जो कागजात की जाँच पड़ताल का वो 25 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौसमुद्दीन आपका लाहौर से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, सिंध में भी तमाम तर सियासी जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पुरजोश दिखाई दे रही हैं और कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। कराची का रुख करते हैं, जहां से नौरीन आसिफ हमें ज्वाइन कर रही हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। नौरीन, अपडेट कीजिएगा।
जी, तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वो काफ़ी मुतहरक और सरगर्म नज़र आ रही हैं। सुबह से ही लोग आना शुरू हो गए हैं और कागज़ात नामज़दगी जमा करवा रहे हैं और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और तकरीबन जो कराची से सिंध असम्बली की नशस्तें हैं वो 47 हैं और कौमी असम्बली के लिए 22 हैं, जबकि मखसूस नशस्तें भी हैं, ख़वातीन के लिए 29 और अक़लियतों के लिए 9 नशस्तें हैं। कराची के जो 7 अज़ला हैं उनकी जो जनरल नशस्तें हैं उस कौमी और सूबाई असम्बली के लिए, उनके लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज़ जो हैं वो बनाए गए हैं, सेंटर जहाँ पर वो आके अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा रहे हैं। जबकि जो मखसूस नशस्तें हैं ख़वातीन और अक़लियतों के लिए वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो हैं शरीफुल्लाह साहब वो ख़ुद उनके जो है वो कागज़ात नामज़दगी वसूल कर रहे हैं। तो अब तक जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के उम्मीदवार अपने कागज़ात नामज़दगी जो है वो जमा करवा चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नौरीन, आप कराची की सूरत हाल से अपडेट कर रही थी। और कराची के बाद रुख करते हैं बलूचिस्तान का। हुकूमत बलूचिस्तान ने आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं ताकि उम्मीदवार इलेक्शन के तमाम मराहिल में बिला खौफ व खतर अपनी सियासी और इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी रख सकें। इस वक्त कोयटा में निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला कैप्टन रिटायर्ड जुबैर जमाली हमारे नुमाइंदे मीर सलाम जोगिज़ई के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। जी मीर सलाम जोगिज़ई, क्या तफसीलात हैं? जी, आम इंतखाबात 2024 के लिए हुकूमत बलूचिस्तान ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला मीर जुबैर जमाली साहब। इस इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगियाँ जमा हो रही, सियासी पार्टियाँ और इलेक्टेबल और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो है इलेक्शन के मैदान में जा रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत की क्या अवलिन तरजीहात होगी? शुक्रिया PTV का। आपके तवसत से मैं कहता चलूँ कि अभी तक जो है सारी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारा डिपार्टमेंट, वज़ीर आला साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके मुताबिक हमारी जो हैं इधर मीटिंग्स भी हो रही हैं, डिस्कशंस भी हो रही हैं और इवन डिस्ट्रिक्ट से भी तहसील लेवल तक जो सिक्योरिटी की हैं कंसर्न्स उस पर भी बातचीत हो रही है। आपके रिटर्निंग ऑफिसर्स वगैरह इन सब का जो है सारे डेटे वगैरह वो सारा काम हो रहा है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आ चुका है तो उसके मुताबिक काम चल रहा है। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी आम इंतखाबात 2024 कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक कौमी और सूबाई हलकों में 197 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। कौमी असम्बली के हल्का 148 में 8, 149 में 8, 150 में 11, जबकि N151 में 3 और कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। N152 में 9 जबकि N153 में 11 कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। जिला लोधरा के 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों में कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों की तादाद 65 हो गई है। जिला में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में 2018 के आम इंतखाबात की निस्बत 19% इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसीलात आपको बताएंगे लोधरा से हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा। जी बिल्कुल, ज़िला लोधरा के 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों में कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों की तादाद 65 हो गई है। N155 में कागजात जमा करवाने वालों की तादाद 6 जबकि N155 में कागजात जमा करवाने वालों की तादाद 13 है। सूबाई हलका PP 225 में 15 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। PP 226 में 17 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि PP 227 में 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि PP 228 में 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। कागजात जमा करवाने वालों में काबिल ज़िक्र इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर खान तरीन ने हल्का N155, जबकि साबका वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अमूर अब्दुर्रहमान कांजू ने हल्का N154 से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। अगर हम बात करें रजिस्टर्ड वोटर्स की तो डिजिटल मरदमशुमारी के बाद ज़िला लोधरा में जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो 11,15,224 है, जबकि मर्दाना वोटर्स की तादाद 5,97,961 है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5,17,263 है। 2018 के जनरल इलेक्शन के मुकाबले में अब 19% नए वोटर रजिस्टर्ड हुए हैं। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। जी लोधरा से अपडेट कर रहे थे अब्दुल्ला डाहा। नाज़रीन, आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी करते हुए कागजात जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी भी कर दी है। वकार हैदर रिपोर्ट करेंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे, लेकिन अब उम्मीदवारान अपने कागजात नामजदगी 24 दिसंबर यानी इतवार तक जमा करा सकते हैं।
इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की दरखास्त पर नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के नए शेड्यूल के मुताबिक अब कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी, जबकि कागजात नामजदगी के मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों के लिए 3 जनवरी का दिन मुख्तस किया गया है। 10 जनवरी को अपीलों पर एपलेट अथॉरिटी के फैसले का आखिरी दिन होगा। इलेक्शन कमीशन 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें जारी करेगा, जबकि 12 जनवरी कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट करेगा। इलेक्शन कमीशन को मुस्लिम लीग नून, JUI समेत दीगर सियासी जमातों ने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए तारीख में तोसी करने की दरखास्तें दी थीं। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे पेशावर से अपने नुमाइंदे अमजद अली खान से। जी अमजद, पेशावर में क्या सूरत हाल है, आगाह करें नाज़रीन को। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज चौथे रोज़ भी जारी है। कौमी असम्बली के 45 और सूबाई असम्बली के 115 जनरल नशस्तों के अलावा ख़वातीन और अक़लियतों के मखसूस नशस्तों पर भी बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। जी इसी तरह स्पेशली हम पेशावर की बात की जाए, पेशावर में कौमी असम्बली के 5 नशस्तों के लिए अभी तक 194 बंदों ने कागजात वसूल किए जा चुके हैं, जिसमें आज तक 11 बंदों ने अपने कागजात जमा भी कराए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई असम्बली के लिए अभी तक 530 बंदों ने कागजात वसूल किए हैं, जिसमें 60 से ज़्यादा लोगों ने अपने कागजात जमा भी करा चुके हैं मुख्तलिफ RO के दफ्तर में। इसी तरह दीर में जमात इस्लामी के सरबराह आमिर सिराजुल हक ने अपने हल्के में कौमी असम्बली के लिए कागजात जमा कराए हैं और डेरे इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी कागजात जमा कराए हैं। बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ हल्कों में कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला कल 4 बजे तक जारी रहेगा। शुक्रिया अमजद अली खान आपका पेशावर से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, कुछ दीगर खबरों में आपको आगाह करेंगे। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुजाहिरीन के साथ पुलिस के गैर मुनासिब सलूक पर तशवीश का इजहार किया। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का कहना था कि पुलिस को मुजाहिरीन के साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। अनवार उल हक काकड़ ने बताया कि गिरफ्तार मुजाहिरीन को ज़ाती मचलकों पर रिहाई दी गई है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने भी इस्लामाबाद में मुलाकात की और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने अमन व अमान से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू की। सदर ममलकत और गवर्नर की मुलाकात में इस्लामाबाद में मुजाहिरीन के साथ पुलिस के नामुनासिब सलूक पर भी बात हुई। और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी कोर्स 2024 की ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ तकरीब की मेहमान खुसूसी थे। नेशनल सिक्योरिटी कोर्स 15 अगस्त 2023 को शुरू हुआ था और अब इख्तिताम पजीर हुआ। इसमें पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज के साथ साथ मुसल्लह अफवाज और दोस्त ममालिक के अफसरान ने भी शिरकत की। इस कोर्स का बुनियादी मकसद कोर्स के शुरका को जामे कौमी सलामती की तामीर के बाहमी अमल को समझने के काबिल बनाना था। निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद के लिए इक़दाम कर रहा है। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत कर रही है। एक सवाल पर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए ज़्यादातर मुजाहिरीन रिहा कर दिए गए हैं। जिन गिरफ्तार अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी उनसे तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आज़म चारों सूबाई वज़रा आला से राब्ते में हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिन चीज़ों का इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है उसका तदारक हो। इलेक्शन कमीशन ने अपने शेड्यूल में और इलेक्शन की तारीख में कोई तब्दीली नहीं की, तो इसका मतलब यही है कि 8 फरवरी जुमेरात 2024 को इलेक्शन होंगे। लॉ इन्फोर्समेंट सूबाई एक मामला है और सूबाई हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया अगर ये महसूस करे कि कानून के तहत किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वो करती है। अच्छा। और अगर कहीं पे ज्यादती हुई है तो जाहिर है उसके फोरम्स मौजूद हैं और उन लोगों ने उन फोरम्स को इस्तेमाल भी किया है और वो फोरम आपको हरकत में भी नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलादम करार दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की तरफ से महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया, जिसमें कहा गया है कि PTI ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए। तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया को दरपेश बड़ा चैलेंज है और यहाँ मौजूद इंसानों ने ही इस दुनिया की बका की फिक्र करनी है। कराची में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि दुनिया में बनाई जाने वाली 50% चीज़ें 6 माह में नाकाबिल इस्तेमाल हो जाती हैं और ज़मीन पर आलूदगी में इजाफे का बायस बन रही हैं। उन्होंने कहा कि शमसी तवानाई बिजली पैदा करने और आलूदगी से बचाव का बेहतरीन मुतबादिल जरिया है। सदर ममलकत ने कहा कि गजा में होने वाले इंसानियत सोज वाक़यात ने दुनिया की अखलाकियात पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से ज़्यादा फौरी और तवज्जो तलब मामला गजा में इंसानी जानें हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा में इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर कर ली है। सलामती काउंसिल के 13 अरकान ने इस करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि रूस और अमरीका ने वोटिंग से इज्तनाब किया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 दिन के मुज़ाकरात के बाद सलामती काउंसिल ने बिलाखिर गजा में इमदाद की फराहमी की मुत्तहिदा अरब अमारात की करारदाद मंजूर कर ली, जिसमें कहा गया है कि गजा में ज़रूरत के मुताबिक फलाही इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वोटिंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गजा में इमदाद पहुंचाने में सबसे बड़ी रुकावट और असल मसला इसराइली जारहियत है। उन्होंने फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा किया। एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि गजा में मौसर इमदादी ऑपरेशन के लिए सिक्योरिटी अमला जो हिफाजत में काम कर सके, लॉजिस्टिक सलाहियत और तजारती सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है। ताहम अफसोस कि ये सहूलियात हमें मुयस्सर नहीं। आलमी इदारे के सरबराह ने उम्मीद जाहिर की कि सलामती कौंसिल की करारदाद की मंजूरी के बाद हमें फौरी तौर पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। उधर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल जारी है। सहूनी फ़ौज ने गजा में मजीद बड़े पैमाने पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले किए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजरायली फ़ौज ने खान यूनिस और अल नसीरात पनाकुज़ीन कैंप में रिहायशी इमारतों समेत मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया है। अरब मीडिया के मुताबिक गजा के इलाके अल शुजाया में इजरायली फ़ौज ने एक बड़ा फ़ज़ाई हमला किया। हुकाम के मुताबिक हमले में मुतादिद अफराद के शहीद और ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। रफ़ा और नसीरात पनाकुज़ीन कैंपों पर भी मुसलसल हमले जारी हैं, जिसमें मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए। गजा में जारी सहूनी बरबरियत में अब तक 20,057 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 53,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। शुहदा में 14,000 से ज़्यादा बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। मगरबी किनारे में भी सहूनी दहशतगर्दी जारी है। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक हलूल कस्बे में मुजाहिरीन पर इजरायली फ़ौज ने फायरिंग की है। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में भी इजरायली फ़ौज ने छापामार कार्रवाइयों के दौरान दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गजा और दीगर फ़लस्तीनी इलाकों में भी हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। यमन के दारुल-हुकूमत सना में बड़े पैमाने पर लोग फ़लस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन में बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। लाखों मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों के हक में कत्बे और बैनर्स उठाए हुए थे। मुजाहिरीन ने इसराइली जारहियत के खिलाफ नारे लगाए। निगरान वफाकी वज़ीर IT डॉक्टर उमर सैफ का कहना है कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के बरवक्त फैसलों से IT एक्सपोर्ट $10 अरब तक ले जाने के हमारे अज़ाइम के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से आपको आने वाले बुलेटिन में मजीद बताएंगे। फिलहाल आपको आगाह करें कि आइंदा साल हज के लिए रेगुलर हज स्कीम के तहत दरखास्तें जमा कराने की मुद्दत खत्म हो गई है। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक 28 दिसंबर को कुरानदाजी की जाएगी। स्पॉन्सरशिप स्कीम में दरखास्तों के लिए 31 दिसंबर तक तौसीह भी कर दी गई है। सऊदी एविएशन डिवीजन ने एयरलाइंस को हज परवाजों का शेड्यूल जमा कराने के लिए 2 जनवरी की डेडलाइन दी है। अहम खबर से आपको आगाह करें। मारूफ बरतानवी फाइनेंशियल और बिजनेस अखबार में पाकिस्तानी मवाक़ों के मोतरफ गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने का चर्चा। सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने पर खुसूसी इरशाद की गई। CTM लंदन में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला इक़्तिसादी अखबार है। बरतानवी अखबार ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के खुसूसी मवाक़ों पर रोशनी डाली है। आपको आगाह करेंगे, मारूफ बरतानवी फाइनेंशियल और बिजनेस अखबार पाकिस्तानी मवाक़ों की मौतरफ गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने का चर्चा। सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने पर खुसूसी इशार। CTM
लंदन से सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला इक्तिसादी अखबार है। आपको आगाह करें कि अखबार में लिखा गया है कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी होने के साथ एक मुनफरिद जियो स्ट्रेटेजिक महल्ले वकूँ रखता है। पाकिस्तान के 4.8 ट्रिलियन पाउंड मालियात की मादनी दौलत गैर मुल्की सरमायाकारों को तेजी से राग़ब कर रही है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सरमायाकारी का फ़ाल तौर पर खैर मकदम कर रहे हैं। सिटी AM ने मजीद लिखा है कि खसूसी सरमायाकारी की कौंसिल SIFC का आइंदा 5 सालों में 48 बिलियन पाउंड सरमायाकारी मुल्क में लाने का हदफ है। बलूचिस्तान में रिकॉर्डिंग के मकाम पर सोने और तांबे के वसी ज़खायर सऊदी अरब और कनाडा समेत कई मुल्कों की सरमायाकारी के लिए मौजू हैं। सिटी AM की जानिब से ये भी लिखा गया है कि पाकिस्तान के वाफर मादनी वसाइल में कोयला, नमक, लिथियम, रेयर अर्थ, निकल, याकूत, क्रोमाइट और ज़मुरद भी शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान 2031 तक काबिल तजदीद तवानाई को दोगुना करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वकूँ इसे बैनुल-अक़वामी गैस कॉरिडोर के तौर पर भी एक मिसाली हैसियत मुहैया करता है। इसी पर मजीद बात करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से देखते हैं कि अब गैर मुल्की मौक़र जरीदे जो हैं पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो सलाहियतें हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान में जो बिजनेस के मौक़े हैं उनके मोतरफ है? देखिए, पाकिस्तान को हमें दुनिया में बियॉन्ड दिस डेट जो हम दुनिया से मांगते हैं और एक हर वक्त इस न्यूज़ में रहता है कि हम IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं, सो यू हैव टू पिच पाकिस्तान मच बियॉन्ड दिस थिंग। पाकिस्तान मतलब ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे रिसोर्सेज ना अवेलेबल हों। पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे एक यंग पॉपुलेशन जो इंग्लिश स्पीकिंग है ना अवेलेबल हो। पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जो एट द क्रॉस रोड्स ऑफ साउथ एशिया, वेस्टर्न एशिया ना हो और सेंट्रल एशिया। तो अगर हम ये सब चीज़ें देखें तो मे बी इट इज़ टाइम कि हम पाकिस्तान को पिच करें कि इतने बड़े माइंस एंड मिनरल्स के रिसोर्सेज रेकॉर्डिक पाकिस्तान में है और वो दुनिया की सबसे बड़ी अनटैप्ड कॉपर एंड गोल्ड माइन है। पाकिस्तान की मिनरल वेल्थ के डिफरेंट तखमीने आ रहे हैं। ये $4.8 बिलियन एक तखमीना आया है, बल्कि 4.8 बिलियन पाउंड्स, जो कि अगर आप डॉलरों में करें तो ये 6,000 अरब डॉलर बनता है। ऑफ कोर्स ये ओवर द नेक्स्ट मेनी डेकेड्स है अगर हमने इसको पाए तकमील तक पहुंचाना है। एक ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी आप जब तक दुनिया को नहीं देंगे और हर वक्त एक ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट करेंगे कि हम डिफ़िकल्टी में हैं, हमारी डिफ़िकल्टीज अपनी जगह, हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, इसको सर्कमवेंट करने के लिए ऑफ कोर्स आपने देखा कि एक SIFC का क़याम हुआ। मैं हमेशा अफसोस से कहता हूं कि हमने BOI, प्राइवेटाइजेशन कमीशन, ये अदारे बनाए, बट हम इनको कभी भी इतना फाल ना कर सके कि हम अपनी प्राइवेटाइजेशन कर सकें और दुनिया में जाकर PIAs, अपनी एनर्जी सेक्टर, इनको बेच सकें। और हमने कभी भी BOI को इस तरह का अदारा नहीं बनाया पिछले कई दिहाइयों में कि वो पाकिस्तान को पिच कर सके एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। आई थिंक SIFC एक ऐसा कदम है कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के थ्रू पाकिस्तान को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वन विंडो ऑपरेशन, इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ाया जाए। आई थिंक ये सब फाल बनाने के लिए एक अच्छी प्रोफेशनल टीम वहाँ होनी चाहिए। आप देखिए ना कि कार कंट्री से आप टैपी से लेके कितने रिसोर्सेज अपनी एनर्जी के ले सकते हैं। आप एक्सपोर्ट अगर पाकिस्तान को, गवादर को कनेक्ट करेंगे तो यूरोप से लेकर जापान तक आप अपनी जो मसनूआत है वो बेच सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग को सबसे पहले फाल बनाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में आपको FDI लानी है, आपने कॉर्पोरेट फार्मिंग करनी है। ये सब काम जो है वो पाकिस्तान को ज़रूर करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन की अहम कामयाबी, हज ऑपरेशन को डिजिटलाइज्ड करने के लिए पाक हज मोबाइल ऐप का इजरा कर दिया गया है। निगरां वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ और वज़ीर मज़हबी उमूर अनीक अहमद ने मोबाइल एप्लीकेशन का इजरा किया। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तैयार करदा मोबाइल ऐप के जरिए आज़मीन हज के लिए तमाम मालूमात बआसानी दस्तयाब होंगी। मिनिस्टर साहब हमारे पास तशरीफ़ लेके आए, इधर रिक्वायरमेंट के जो हाजी हैं उनको वहाँ बहुत मुश्किलात दरपेश आती हैं। बाज़ का छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो इतने बड़े मिशन में लोगों को दरपेश आती हैं, और टेक्नोलॉजी सर्टनली इसका हल है। इसको एक ऐप में इस तरह डेवलप किया जाए कि जब हाजी पाकिस्तान से चले और पाकिस्तान आके वापस लैंड करे तो इस तमाम दौरानियों में हर वक्त हमारे साथ कनेक्टेड रहे। मिनिस्टर साहब हमारे पास तशरीफ़ लेके आए।
और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही है। गुज़श्ता रोज़ मजीद 1562 अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। 22 दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,44,938 तक पहुँच चुकी है और वापसी का ये सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 86 गाड़ियों में 119 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। पाक फौज की जानिब से शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर के मुल्हिका इलाके सरबजई में जदीद खतूत पर उस्तवार आला तालीमी इदारे का क़याम अमल में लाया गया है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके सरबजई गाँव के बच्चे काफ़ी अरसे से तालीम जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम थे। इस ज़िम्न में सरबजई गाँव के बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए पाक फौज की जानिब से अपनी मदद आप के तहत मोहम्मद मॉडल स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। शिमाली वज़ीरिस्तान में स्कूल के क़याम के हवाले से पाक फौज ने आला तालीमी मायार के मुताबिक स्कूल के क़याम को अमली जामा पहनाया। मोहम्मद मॉडल स्कूल तालीमी एतबार से तमाम तर जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन है। तलबा और तालिबात को बुनियादी उलूम से मुतारिफ कराने के लिए दिलचस्प कुतब और दरियाफ्त करने के लिए लाइब्रेरी की सहूलत भी दी गई है। तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म्स, स्टेशनरी और दिलचस्प किताबों पर मुश्तमिल स्कूल बैग्स वगैरह भी फराहम किए जाते हैं। दौरे हाजिर की तमाम जदीद तरीन तालीमी सहूलियात से मुज़य्यन पाक फौज के इस इक़दाम पर सरबजई गाँव की आवाम बेहद खुश और पाक फौज के इंतहाई मशकूर हैं। लोगों का कहना है कि मोहम्मद मॉडल स्कूल न सिर्फ तालीमी मैदान में इनकलाब बपा करने की सलाहियत रखता है, बल्कि इससे सरबजई गाँव की शरह खानदगी में भी काफ़ी हद तक इजाफा होगा। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के ताउन से कंट्रोल लाइन पर वाक़ गाँव ढोबा बेती में मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। इसका मकसद दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलियात मकामी लोगों को घर की दहलीज पर फराहम करना था। मेडिकल कैंप में इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के माहिर डॉक्टरों ने अपनी खिदमात पेश की। माहिर अमराज नस्वा, माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज अतफाल, जनरल सर्जन और मेडिकल स्पेशलिस्ट भी मेडिकल कैंप का हिस्सा थे। मेडिकल कैंप में 500 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया और अद्वियात दी गई। मकामी आबादी ने दूर दराज इलाकों में मेडिकल कैंप के इनेकाद को भरपूर सराहा और पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला 22 दिसंबर 2023 को ऑडिटोरियम में कन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। तकरीब में DGMS सर्जन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद कुरैशी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेहमान खुसूसी की जानिब से 101 मेडल ग्रेजुएट्स में MBBS की डिग्रियां तकसीम की गईं। MBBS ग्रेजुएट्स को 24 गोल्ड, 27 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स दिए गए। डॉक्टर शाहबानो को 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांसी के तमगों के साथ सेशन 2017 तक 2022 की बेहतरीन ग्रेजुएट करार दिया गया। मुख्तलिफ मज़ामीन में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले ग्रेजुएट्स को 7 सर्टिफिकेट्स दिए गए। प्रिंसिपल हाईटेक टेक्सला मेजर जनरल हामिद शफीक रिटायर्ड ने अपने खिताब में तलबा और फैकल्टी की काविशों को सराहा और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मौजूदगी पर शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, हिंदुस्तान में किसानों का आलमी दिन हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से हिंदुस्तानी किसान मोदी सरकार के निशाने पर हैं। हिंदुस्तानी किसानों ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि मोदी सरकार ने किसानों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। मोदी सरकार की जानिब से बनाए गए कवानीन के मुताबिक किसान सिर्फ मखसूस अजनास ही उगा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कवानीन के तहत आड़त की मंडियां खत्म हो जाएंगी। निजी खरीदारों को इजाज़त हासिल होगी कि बराह रास्त किसानों से उनकी पैदावार खरीद कर ज़ख़ीरा कर लें। मोदी सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कवानीन के तहत किसानों के माशी कत्लेआम में मुलव्वस है। 2020 में भारतीय किसानों ने मोदी सरकार की पॉलिसी से नाला होकर बड़े पैमाने पर पंजाब और हरियाणा की रियासतों में एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया था। दिसंबर 2020 से भारतीय किसानों ने दिल्ली चलो तहरीक और भूख हड़ताल का भी ऐलान किया था। सिर्फ 2019 में 10,000 से ज़ायद किसानों ने अपनी जानें ली। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 1995 से अब तक 2 लाख से ज़ायद हिंदुस्तानी किसान खुदकुशी कर चुके हैं। और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने पुंछ और राजौरी अजला में मुसलसल दूसरे रोज़ भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं, जहाँ लोगों को सख्त हिरासा किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने पुंछ के इलाके सरनकोट में एक हमले में 5 फौजियों की हलाकत और मुतादिद जख्मी होने के बाद इन अजला में तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। मकामी रिहायशियों ने ज़राए इब्लाग को बताया कि भारतीय फौजी घरों में घुसकर मकीनों को खौफजदा करते हैं और घरेलू सामान की तोड़ फोड़ करते हैं। काबिज इंतजामिया ने मुमताज़ आलमदीन गाजा सैयद मोहम्मद हादी मूसवी को मुसलसल 11वें जुमे को बडगाम में उनकी रिहाइशगाह पर नज़रबंद रखा। उन्हें श्रीनगर के इलाके बमना में इमाम बारगाह में नमाज जुमा की इमामत से रोक दिया गया। उन्हें नमाज जुमा के बाद एक एहतजाजी मुजाहरे से खिताब भी करना था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में अफसोस का इज़हार किया है कि भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के आवाम के तमाम तर बुनियादी हुकूक सल्ब कर रखे हैं। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि वो मकबूजा इलाके में भारतीय मसालिम का नोटिस लें और तनाज़ कश्मीर के हल के लिए मौसर किरदार अदा करें।
दूसरी जानिब जिला बारामूला के मकीनों ने काबिज इंतजामिया की आवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने खाली बर्तन उठाकर शहरियों को पीने के पानी की फराहमी में नाकामी पर इंतजामिया के खिलाफ अपने गम गुस्से का इजहार किया। मुजाहिरीन ने सड़क भी ब्लॉक कर दी, जिसके बायस गाड़ियों की आमदरफ्त घंटों मुअत्तल रही। कुछ दीगर कौमी खबरों में आपको बताएंगे, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में क्रिसमस के हवाले से मौसीकी का अहतमाम किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और खूब महसूस हुए। समीउल्लाह की रिपोर्ट। क्रिसमस की मुनासबत से महफिल मौसीकी में पाकिस्तान की पहली सूफी ओपरा गुलकारा सायरा पीटर ने अपनी जादुई आवाज से सामईन को खूब महसूस किया। सायरा पीटर ने गजा में जारी इसराइली जारियत के खिलाफ नहते फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार करने के लिए मुख्तलिफ नगमे भी पेश किए। वफाकी वजीर कौमी विरसा और सकाफत जमाल शाह और DGPNCA अयूब जमाली ने सायरा पीटर की गायकी की तारीफ की और मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। इस कॉन्सर्ट की खसूसियत ये थी कि एक बहुत बड़ा पैगाम क्रिसमस के हवाले से फ़लस्तीनियों के लिए दिया गया, अमन के लिए दिया गया, और ये कि मौसीकी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। सायरा पीटर ने आपको देखा एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया है कि जी वहाँ के लोग भी आजकल फ़लस्तीन और गजा के हवाले से कितने फ़िक्रमंद हैं। तकरीब के इख्तिताम पर क्रिसमस केक भी काटा गया। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी के बाद बरतानवी साम्राज्य ने मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया। क़याम पाकिस्तान में जिन अवामिल ने अहम किरदार अदा किया, उनमें कांग्रेस के मुसलमानों के जुदागाना इंतखाबात के मुतालबे की मुखालफत, तकसीम बंगाल की तनसीख, 1928 की नेहरू रिपोर्ट और 1937 में कांग्रेस की जाबराना हुकूमत थी, जिसने मुसलमानान हिंद को मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में मुत्तहिद कर दिया। कराची से देखेंगे सुहेल जमाली की रिपोर्ट। बर्रे सगीर के जोग्राफिये में मुसलमानों की आज़ाद रियासत का क़याम मारूजी हालात और हक़ाइक़ का एक फितरी नतीजा था। बरतानवी इस्तेमार के साए तले हिंदू अक्सरियत की जानिब से मुसलमानों के हर जायज़ मुतालबे को रद्द करना इंडियन नेशनल कांग्रेस का वतीरा था। कांग्रेस के इस रवैये ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर मोहम्मद अली जिन्नाह को एक अलहदा वतन के मुतालबे पर मजबूर किया। 1909 में जब मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ने मुसलमानों के मुतालबे सेपरेट इलेक्ट्रेट को मान लिया, उसकी जो मुखालफत कांग्रेस की जानिब से हुई, उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिन्ना साहब ने फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट करवाया। बिल आखिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब अलहदगी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 20वीं सदी में आज़ादी की तहरीकों में बाबाए कौम को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने एक पुरअमन जिद्दोजहद से पाकिस्तान का क़याम मुमकिन बनाया। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क हिंदुस्तान में हासिल किया। दलाइल की बुनियाद पे उनकी जिद्दोजहद आइनी और कानूनी जिद्दोजहद है। पाकिस्तान के मुतालबे के बावजूद सूबाई खुद मुख्तारी पर मबनी कैबिनेट मिशन प्लान को तस्लीम करना कायदे आज़म की वसीउल क़ल्बी का मजहर था, जिसे कांग्रेस ने रद्द कर दिया। अब नेहरू से पहले अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सदर थे। उन्होंने लिखा कि काश उस वक्त मैं सदर होता और मैं कैबिनेट मिशन प्लान पे अमल होने देता। बानिए पाकिस्तान की जिद्दोजहद और अफकार ममलिकत खुदादाद के लिए मशाले राह हैं, जिनकी रोशनी में पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरी और फलाही रियासत बनाया जा सकता है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मुनक़िदा एक पुरवक़ार तकरीब में बाबाए कौम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के मुजस्समों की नक़ाब कुशाई हुई। तकरीब में सफारती एहलकारों समेत माओ ज़ेतुंग की भांजी ने भी शिरकत की। पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने क़ायद-ए-आज़म और चेयरमैन माओ को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश करते हुए कहा कि दोनों शख्सियात मुमताज़ मकाम रखती हैं। दोनों रहनुमा अपनी कौमों के लिए आज़ादी, खुद मुख्तारी और इंसाफ का मुश्तरका विजन रखते हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। क्लिक 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 टैप टैप हो गया सब लाइव all in one app. It's banking at your fingertips. Bills pay ho in just few clicks. सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। MCB लाइव पे नो झंझट, यहाँ हो सब सिक्योरली, क्योंकि ये है द बेस्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग श्योरली। तो डाउनलोड करो MCB लाइव, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग।
ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स, अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में। और सब एक साथ, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। बैक नाज़रीन, मलका तरन्नुम नूर जहान को हमसे बिछड़े 23 बरस बीत गए, मगर उनके सुरों की बाज़गश्त आज भी 400 सुनाई देती है। वर्दा सलीम रिपोर्ट कर रहे हैं। सुर और लय की मलका, मलका तरन्नुम नूर जहां मौसीकी का एक ऐसा रोशन बाप है जिसका शायद ही कोई सानी हो। एक ऐसी मधुर आवाज जिसे मौत भी खामोश ना कर सकी, और ये खूबसूरत आवाज आज भी मौसीकी के शायकीन के कानों में रस घोल रही है। 21 सितंबर 1926 को बाबा बुल्ले शाह की धरती का सूर में आँख खोलने वाली अल्लाह वसाई को कुदरत ने ऐसी खूबसूरत आवाज अता की कि वो जहाने मौसीकी की नूर जहां कहलाई। उन्होंने फनी कैरियर का आगाज पसे पर्दा मौसीकी से किया। जल्द ही ये आवाज पसे पर्दा से स्क्रीन पर जलवागर हुई और फिल्म बीनों के दिलों पर राज करने लग गयी। जज्बात और एहसासात को सुरों के उतार चढ़ाव के जरिए अदा करना मलका तरन्नुम का खासा था। उनका हर गीत अनमोल ठहरा। खुश शक्ल, खुश लिबास नूर जहां सुरों की वो फिल्म है जिसमें उन्होंने गुलकारी के साथ साथ अदाकारी के जौहर भी दिखाए और शोहरत के भामे अरूज तक पहुंची। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान मलका तरन्नुम ने बहादुर सपूतों के जज्बे जमा रखने के लिए जो नगमे गाए वो आज भी यादगार हैं। नूर जहां की मौसीकी के लिए खिदमात के इतराफ में उन्हें तमग़े हुस्न कारकर्दगी और तमग़े इम्तियाज समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया। मलका तरन्नुम नूर जहां की तरन्नुम भरी हुई आवाज आज भी शायकीन के कानों में रस घोल रही है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और मारूफ अदाकार इजहार काजी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। मरहूम इजहार काजी की फनी जिंदगी पर नजर डाली है कराची से हसन नासिर सिद्दीकी ने अपनी इस रिपोर्ट में। इजहार काजी 15 सितंबर 1959 को कराची के एक इल्मी और अदबी घराने में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम के बाद कराची यूनिवर्सिटी से MA इकनॉमिक्स और बाद में LLB की डिग्री हासिल की। इजहार काजी ने अपने फ़नी करियर का आगाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न से फातिमा सुरैया बजिया के ड्रामे अना से किया, जिसे देखने वालों ने बहुत पसंद किया। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से नश्र होने वाले ड्रामों भंवर, गर्दिश, दायरा और ज़ाद राह में नुमाया किरदार अदा किया। इजहार काजी ने बड़ी स्क्रीन पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनकी मशहूर फिल्मों में बैंकॉक के चोर, रूबी, लव इन नेपाल और मनीला की बिजलियां को फिल्म बीनों में बहुत मकबूलियत हासिल हुई। ये सब कुछ तुमने बहुत देर के बाद बताया माँ। मेरे बाप के कातिल मेरी नजरों के सामने रहे और मैं उन्हें पहचान न सका। क्यों छुपाया सब कुछ तुमने मुझसे? क्यों उन्हें इतना जीने का मौका दिया? अपनी जाज़िब नज़र शख्सियत और डायलॉग की बर्जस्ता अदायगी के बायस उन्हें अपने हम असरों में नुमाया मुकाम हासिल था। शानदार फनी खिदमात के अतराफ में इजहार काजी को 2 मरतबा निगार अवार्ड से नवाजा गया। शोबिस की दुनिया के इस दरख्शां सितारे ने 23 दिसंबर 2007 को कराची में दार फ़ानी को खैरबाद कहा। ताहम अपने शानदार काम के बायस वो अब भी अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और चित्राल की वादी कैलाश में मजहबी त्यौहार चाउमोस इख्तिताम पजीर हो गया। तर्जमान टूरिज्म अथॉरिटी मोहम्मद साद के मुताबिक चाउमोस फेस्टिवल में कसीर तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने शिरकत की। टूरिज्म पुलिस कांस्टेबलान ने फेस्टिवल में ड्यूटी सर अंजाम दी। फेस्टिवल में मुख्तलिफ रसूमात की अदायगी भी की गई। चाउमोस त्यौहार मौसम सरमा के लिए खुशी और अमन की अलामत के तौर पर बनाया जाता है। आपस में प्यार और मोहब्बत बांटने, अमन का पैगाम देने और इत्तेहाद के लिए फल, सब्जियाँ और खुश्क मेवाजात तकसीम किए जाते हैं। गिलगित में एक रोज़ा मुशावरती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद आफात की वजह से होने वाले नुकसानात का कुदरती तरीकों की मदद और मकामी आबादी के ताउन से हल निकालना है। तफसील बताएंगे नज़ाकत अली अपनी इस रिपोर्ट में।
गिलगित बल्तिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल इलाका है। कुदरती आफात की वजह से अवाम को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है, खुसूसन पीने के पानी और आपाशी के चैनल्स को नुकसान पहुँचने की वजह से अवाम मुतासिर होते हैं। नेचर बेस्ड सोल्यूशंस के लिए महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और WWF के इश्तराक से मशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी इदारों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर नेचर बेस्ड सोल्यूशंस की कंसल्टेंट फातिमा यामीन ने खिताब करते हुए कहा कि इस मशावरती वर्कशॉप का मकसद माहौलियात से मुतालिक इश्यूज को हल करने के लिए सरकारी मंसूबाजात में नेचर बेस्ड सोल्यूशंस को शामिल करना है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो है इस वक्त नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं और ये हमारे कल्चर्स और ट्रेडिशंस में भी शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए कि उनके नेचर के ऊपर जो इम्पैक्ट हैं वो सबसे कम हो सकें। हमारी ये कोशिश है इस प्रोजेक्ट के थ्रू कि गवर्नमेंट लेवल पे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर हम इस नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के जो अप्रोचेस है इसको इंश्योर करा लें। हम रैप प्रोजेक्ट में जो कि वाटर रिसोर्स अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि हम जो लोकल कम्युनिटीज़ है हमारे उनके रेजिलियंस को बढ़ा सके टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। मशावरती वर्कशॉप के दौरान नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए मुख्तलिफ आइडियाज देते हुए कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान कुदरती आफात में घिरा हुआ इलाका है। आफात के दौरान जानी और माली नुकसानात से बचने के लिए अवाम में शऊर व आगाही उजागर करवाने के लिए आगाही सेशंस भी मुनक्किद करवाए जाएं। और अब बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मौसम की खबरें। अस्सलाम वालेकुम। खबराबे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा। ताहम कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले स्कर्दू की बात करेंगे, जहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लह में -6, गोपस -5, कालाम -4, जबकि अस्तोर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।